Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, today I have told you to write the comments in the comment section if you have not understood anything from chapter number 1, chapter number 2. So I have got some queries. So one query was from this same chapter, ठीक है? I think it was asked by Jyoti, exercise 4F, question number 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4F. तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. बाय व्हाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड. किस नंबर से -44/9 को डिवाइड करेंगे जिससे आपको क्या मिलेगा? -11/3. राइट. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू whenever you are adding whenever you are dividing two rational numbers, that is a/b divided by c/d. The next step is to take the reciprocal of the second, जो दूसरे नंबर वाला रैशनल नंबर होगा. सेकेंड रैशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल ले लेंगे और फर्स्ट रैशनल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. Isn't it? This is the first step. Okay. So now what we have to do? We have to do the same thing here. Now what is the reciprocal of x? Please pause the video and reply to me in the comment sections. रेसिप्रोकल क्या होगा x का आपका? It will be 1/x. Clear? Now this 1/x, this is in divide. ये जो x है ये -44 के साथ डिविजन में है क्योंकि -44 is the numerator, x is the denominator. तो this x when it will go on the right hand side क्या हो जाएगा ये आपका? It will be in multiplication. -11/3 multiplied by x. Clear? Now again, as you all can see that this 3 is in with division with x. 3 जो है x के साथ डिवाइड में है और -11 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है. तो whenever anything is goes from left hand side और from the right hand side, लेफ्ट वाली राइट में जाए या राइट वाली लेफ्ट में आए, अपोजिट हो जाता है. तो डिवाइड वाला क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई हो जाएगा. और मल्टीप्लाई वाला आपका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x. सो नाउ द नेगेटिव साइन फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी कैंसल्ड. नाउ 11 1s are 11 4s are 44. 3 1s are 3 3s are 9. So the value of x will be 4/3. So I hope you have understood, Jayati. If you have understood, please reply to me in the comment section. So some of the queries came from the chapter integers also, right? So I am explaining that also. Very good. One student has asked and taken initiative to ask questions from integer. और बाकी बच्चों को शायद अच्छे से आता है. अच्छी बात है. I want full marks from everybody. I am very happy that they have understood. So beta, I am going to explain your query. Example number 7 and 8 on page number 8. Okay, so I am explaining you that. So example number 7 is a shopkeeper gains ₹1 on each pen and loses 40 paisa on each pencil. He sells 45 pens and some pencils, losing ₹5 in all. How many pencils does he sell? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक शॉपकीपर है. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 7, दिस इज ऑन पेज नंबर 8. देर इज वन शॉपकीपर. उसने क्या किया? 45 पेन्स उसने सेल की हैं. कितनी पेन्स उसने सेल की हैं? 45 पेन्स. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. एंड ही हैज़ गेन ₹1 ऑन ईच पेन. हर पेन को सेल करने के बाद उसे ₹1 मिला है. सो नंबर ऑफ पेन्स वॉज 45. तो अब पेन्स पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ऑन पेन्स, क्योंकि एक पेन पे ₹1 मिला है तो 45 पेन पे क्या होगा? 45 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज ₹45. सो ही हैज़ अर्न ₹45 एज अ प्रॉफिट ऑन पेन्स. नाउ कमिंग टू पेंसिल, वी डोंट नो हाउ मेनी पेंसिल्स ही हैज़ सोल्ड. उसने कितनी पेंसिल्स बेची ये हमें नहीं पता, पर एक पेंसिल पे लॉस ऑन 1 पेंसिल कितना था? दैट वॉज 40 पैसा.
कितना था 40 पैसा and we don't know how many pencils he has sold. So the number of pencils sold को हम क्या मान लेंगे, number of pencils sold is equals to x, right? कितनी पेंसिल सोल्ड हुई we don't know, so we are writing it as x. So in the same way हम लोगों को करना होगा, जैसे प्रॉफिट हम लोगों को निकाला था हमने क्या किया, नंबर ऑफ पेन्स में एक पेन का प्रॉफिट मल्टीप्लाई किया. इन द सेम वे अगर हमें पेंसिल्स का लॉस निकालना होगा, लॉस ऑन ऑल पेंसिल्स, क्या करेंगे आप, लॉस को नंबर ऑफ पेंसिल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दिस इज 40 पैसा मल्टीप्लाइड बाय x. बट इन द क्वेश्चन एवरीथिंग इज गिवन इन रुपीज़. सब चीज़ें किस में दी गई हैं, रुपीज़ में दी गई हैं. तो नाउ 1 रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसा. प्लीज़ रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी. सिंस 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा. सो लॉस ऑन ऑल द पेंसिल्स इज इक्वल्स टू 40/100 मल्टीप्लाइड बाय x. तो अब आपका इसको सिंप्लीफाई करिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. सो द लॉस विल बी 2/5x, जिसको आप लिख सकते हैं 2x/5 रुपीज़ 2x/5, क्योंकि नंबर ऑफ पेन्स भी देखिए मल्टीप्लाई हुए थे. नंबर ऑफ पेंसिल्स हमने x माना था, तो हमने इसको x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इन टोटल क्या हुआ है, टोटल ₹5 जो है शॉपकीपर ने लॉस किया है. एज ए लॉस उसको 5 रुपीज़ का लॉस हुआ है ओवरऑल. पेन और पेंसिल का मिला के शॉपकीपर को टोटल ₹5 का लॉस हुआ है. क्लियर. तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस. तो अब इसका प्रॉफिट में से आप इसका लॉस माइनस कर देंगे, तो वो आपके टोटल लॉस के बराबर होगा. पेन्स पे जो प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है पेन्स पे, 45 रुपीज़ का. और पेंसिल्स पे कितना लॉस हुआ है, ₹2x/5 का. तो नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा आपका, नेट प्रॉफिट और लॉस. 45 रुपीज़ उसने पेन पे प्रॉफिट किया और 2x/5 उसने लॉस किया. और दिया भी गया है आपको क्वेश्चन में दैट ही इज़ लूजिंग ₹5 इन ऑल. लूजिंग मतलब कम हो रहा है, इतना पैसा उसको कम मिल रहा है, ₹5, तो इसीलिए -5 लिखा. अगर लिखा होता कि ही इज़ गेनिंग ₹5 इन ऑल, तो मैं यहाँ पे -5 ना लिख के +5 लिखती. अगर लॉस होगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, तो लॉस को हम नेगेटिव में यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वी ऑल नो दैट हाउ टू टेक द एलसीएम. 45 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है. बाय डिफॉल्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर 1 एज द डिनोमिनेटर. ओके. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 1 5 ज़ा 5, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 5. बुक में जो मेथड दिया गया है वो दूसरा मेथड है, बट आई एम सॉल्विंग बाय दिस मेथड. सो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो 225 माइनस 2x/5 इज इक्वल्स टू -5. इतना आपको क्लियर हो गया. नाउ आई एम राइटिंग इट अबव. So 225 minus 2x/5 is equals to -5. Since this 5 is in divide, when it will go on the right hand side, it will be in multiply. So 225 minus 2x is equals to -5 multiplied by 5. तो -5 multiplied by 5 का क्या आंसर होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. इट विल बी -25. So 225 minus 2x is equals to -25. अब आप क्या करेंगे, this 225, this is having a positive sign. When it will go on the right hand side में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 minus 225 is equals to -2x. यहाँ पे आपका -2x ही तो बचेगा जब इसको आप उस तरफ सेंड कर देंगे. तो -2x इज इक्वल्स टू -25 माइनस 225. माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसकी लगती है, माइनस की लगती है. सो -2x इज इक्वल्स टू -250. टिल हियर आई होप एवरीबडी इज क्लियर. बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंदी. थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है. नाउ दिस x इज इन मल्टीप्लाई विद -2.
जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में. नाउ माइनस माइनस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड. 2 1s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So x is equals to 125. That means the shopkeeper has sold 125 pencils. कितनी पेंसिल्स सोल्ड की हैं? 125 पेंसिल्स. गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8. Example number 8 is a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius per hour. यानी कि एक कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें जो है 40 डिग्री सेल्सियस से हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होगा जब टेम्परेचर, तभी वो फ्रीजिंग प्रोसेस होगा प्रॉपरली. नाउ व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 12 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. यानी प्रोसेस शुरू होने के 12 घंटे बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा. क्लियर? सो वी ऑल नो दैट जब प्रोसेस शुरू हुआ था तो टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ द टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स. एंड कितने घंटे का आपको देखना है? 12 आवर्स का देखना है. हर घंटे आपका 5 डिग्री रिड्यूस होता जाएगा. तो ये आपका अभी रूम टेम्परेचर है व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड. सो नाउ द टेम्परेचर आफ्टर n आवर्स, 40 में से 5 किया तो ये आपका 1 आवर के लिए हो गया. 40 में से आपको जब 2 आवर्स के लिए निकालना होगा तो -10 करेंगे, वही 5 2s are 10 तो -10 करेंगे. फिर 3 आवर्स के लिए -4 -5 मल्टीप्लाइड बाई 3. 4 आवर्स के लिए -5 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डायरेक्टली, क्योंकि हमें 12 आवर्स का देखना था. कितना देखना था? 12 आवर्स का देखना था. तो 40 डिग्री -5 मल्टीप्लाइड बाई 12, और आपको पता है 5 12s are 60. सो 40 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज हैविंग नेगेटिव साइन. तो आपका आंसर क्या आया? -20 डिग्री सेल्सियस. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ. इफ यू हैव अंडरस्टूड, whosoever has asked this question, please reply to me in the comment box that you have understood it. You have understood. Okay. Example number 7, example number 8 I have explained. 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर था और उस फ्रीजिंग प्रोसेस में हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना था. और ऐसा कितने देर तक होना था? 12 आवर्स तक होना चाहिए था. तो 12 आवर्स तक 5 अगर कम होगा तो -5 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी टोटल 60 डिग्री सेल्सियस उसको कम होना था. तो 40 - 60 इज इक्वल्स टू -20 डिग्री सेल्सियस. आई होप इट इज क्लियर. So students, the next question which he has asked is example number 5 on page number 11. That is based on modulus of integer, and I have not explained you that modulus of integer. ना मैंने आपको समझाया है, and it is also not coming in exam also. So I will be explaining you that question afterwards. उसको मैं बाद में समझा दूँगी क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है. Okay, that is not coming in exam also. So students, now the next question which I want to explain you is, I have to start from exercise, that is test paper 4. It is having A, B, C and D exercises. How many exercises are there? 4 exercises are there. So firstly I am going to do the question filling the blanks and then true and false. C exercise and D exercise, it is on page number 83. तो फिलिंग द ब्लैंक्स है पर आपको उसको कॉपी में करना होगा क्योंकि उसको आपको सॉल्व करना होता है. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैंक डिवाइडेड बाय -7/5 इज इक्वल्स टू -2/3. ओके, वो एग्जाम्पल 5 में समझा दूंगी बेटा, पर इट इज़ नॉट कमिंग इन एग्जाम. दैट इज़ वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट नाउ. आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट आफ्टरवर्ड्स in the next video. Okay, so x divided by -7/5 is equals to -2/3. यही है आपका क्वेश्चन. Now I have already told you, whenever you are dividing two rational numbers, the second rational number we have to take the reciprocal and then we have to multiply it with the first one. Clear? Now is equals to -2/3.
Now as I told you -7 is in division, it will go in multiplication. 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -7. अब हमें इसे पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपका न्यूमरेटर बन गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. तो माइनस माइनस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड. 2 7s are 14, 3 5s are 15. So what is the value of x? The value of x is 14 upon 15. I hope it is clear, students. Now coming to the second option. The second option is -65 divided by 14 divided by x is equals to 2 1/2, right? तो सबसे पहले 2 1/2 is in mixed fraction. We are going to convert it into improper fraction. So 2 2s are 4, 4 plus 1. तो ये हो जाएगा आपका 5/2. This was the first step. Now as per the division of the rational numbers, what we have to do? We have to take the reciprocal of the second rational number, multiply it with the first one. So I have done the same. मैंने वही सेम चीज़ की है. Okay. Now this x is in divide with this number. When it will go on the right hand side, it will be in multiplication. हो जाएगा 5/2 multiplied by x. अब हमारा x ऊपर आ गया as a numerator. Now we have to send this rational number on the left hand side. So -65 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 5 आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा. ओके. नाउ 2 1s are 2 7s are 5 1s are 5 1s are 5 5 3s are 15. तो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे? -13/7. What will be the answer? -13/7. Okay, students, I hope all of you have understood. Now coming to the third option. The question is explained in the video, you have to do in the classwork copy. जो एग्जाम्पल और जो क्वेरीज बताई थी उसको नहीं करना है आपको, वो तो मैंने सिर्फ समझाया है. सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट. आफ्टर दैट डू दिस इन योर classwork copy, this exercise. Now coming to the third option. What is third option? Third option is -3/8. अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का सिंबल नहीं है, यहाँ पे है प्लस का सिंबल. What should be added to -3/8 to obtain 5/12? This is the question for this. Okay. Now as you all can see that -3/8 is in negative sign. ये क्या है आपका? नेगेटिव है. जब ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. 5/12 प्लस 3/8. It will be like that only. Now we have to add these two rational numbers. So the first step is to take the LCM of the denominators. So the LCM of 8 and 12 is, reply to me in the comment section. 2 4s are 2 6s are 2 2s are 2 3s are 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24. So the LCM of 12 and 8 is 24. क्या है आपका? 24 is the LCM. Now 5 2s are 10, 3 3s are 9. So 10 plus 9/24 is equals to 19/24. क्या होगा? 19/24. So I hope all of you have understood till here. Now multiplicative inverse of -1 3/4. Multiplicative inverse of -1 3/4. ठीक है. आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है. तो वी ऑल नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें रेसिप्रोकल लिखना होता है, पर ये एक क्या है आपका? इट इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ improper fraction. 4 1s are 4, 4 plus 3 7. So it is now -7/4. Now we have to take the multiplicative inverse. तो this is the symbol for multiplicative inverse. तो जब आप इसका multiplicative inverse लिखेंगे आएगा 4/-7. But yes, the denominator can never be negative. So multiply it by -1. So the answer will be -4/7. I hope it is clear, students. आपको अच्छे से समझ में आया होगा.
Now I am going to explain you true false. Listen to the true false orally. Minus 15 upon minus 11 lies to the left of 0 on the number line. When I have explained number lines, rational numbers on real line, तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव जो होंगे वो लेफ्ट साइड में आएंगे आपके 0 के, and the positives are on the right hand side. Clear? But here minus 15 upon minus 11, which type of rational number is this? Please reply to me in the comment section. आप रिप्लाई करिए, then I will tell you. Yes, minus 15 upon minus 11, both the signs are same, जो कैंसिल हो जाते हैं, and it is a positive rational number. तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, क्योंकि वो राइट साइड में आएगा. कहाँ आएगा आपका? राइट साइड में आएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. Why I am explaining true false? Because I want to clarify the concept. मैं चाहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, ये ना याद रहे कि फर्स्ट ऑप्शन का ट्रू था, सेकेंड ऑप्शन का फॉल्स था. नाउ 1/3 एंड -3/2 लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन. 1/3 पॉजिटिव है, -3/2 नेगेटिव है, तो दोनों 0 के अपोजिट साइड्स में ही लाई करेंगे. दैट मीन्स दिस इज ट्रू. One on the left side, one on the right hand side. Now coming to the third option. Minus 8/13 lies to the left of 0 on the number line. And we all know that minus 8/13 is a negative rational number. So obviously it will lie on the left of 0. This statement is true. Now coming to the fourth option. किस पे आ गए हम अब? Fourth option. So the fourth option is minus 4/5 is greater than minus 2/3. How will we compare? So to compare this we have to make the denominator same, because the denominators are different. तो LCM और 5 and 3 is 5 और 3 का they do not have any other common factor apart from 1. तो LCM होगा इनका प्रोडक्ट. 5 3s are 15, 3 5s are 15. So it will be minus 12/15 and minus 10/15. एंड मैंने आपको बताया था नेगेटिव में कौन सा रैशनल नंबर बड़ा होगा? जो छोटा होगा. नंबर लाइन में -10/15 पहले आएगा, -12/15 बाद में आएगा. सो -12/15 इज लेस देन -10/15. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, जो आपको मिली है. Now coming to the last option, -3/5 is the largest among -3/5, -7/10 and -5/6. So this is your task. आप बताएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है. मैं बता दे रही हूँ ट्रू है, बट यू हैव टू टेल मी द रीज़न. ओके, सो दिस इज़ योर टुडेज टास्क. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. हैव अ ग्रेट डे ahead. Thank you students. Subscribe the channel and press the bell icon.